A very good morning to you all. Starting up with our today's topic, that is enzymes and their cofactors and enzyme catalytic strategies. We have already talked about the cofactors, what cofactors are, how do they play their role. We have also talked about enzymes. Yesterday, we talked about enzyme classification and nomenclature. We read how different type of enzymes perform their function, what is their impact on different types of chemical reaction. Moving ahead on to this, specifically and specially for competitive point of view, this topic needs to be covered. You have nothing to relate with in your NCRTs or board exams from enzyme catalytic strategies. But of course, there are questions from enzymes and their cofactors in board exams. Board exams for 11th class, I mean to say, for subjective exams, the exams that you will be giving after ending of your 11th class, your final exams. On in that exams, you will strike the questions from enzymes and their cofactors. This is of course to relate with your subjectives, but enzyme catalytic strategies are specifically and specially for those people who are preparing for competitive point of view. But then of course, after getting into medical colleges or BSc or MSc or whatever, then you will have to read about these things definitely. So for NEET and other type of entrances, pay a very good attention to this topic of enzyme catalytic strategies. Heading up to our very first slide, I have already talked about this enzyme structure and catalysis, where I talked about that enzymes can be imagined as a polypeptide chain, can be tertiary structure in which we have pockets or clefts known as active sites. Simply talking about how does the enzyme work, it is that the enzyme binds to the substrate. Where does it bind to the active site of an enzyme? Substrate कहाँ बाइंड करता है? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे. देन उसके जो बाइंडिंग होता है उसकी वजह से एंजाइम को और सबस्ट्रेट को एक कॉम्प्रोमाइज़ करना रहता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम के अंदर उसकी शेप को थोड़ा अल्टर करने का इंडक्शन करता है ताकि वो जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के अराउंड टाइटली बाइंड हो सके. देन आफ्टर दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है सबस्ट्रेट के साथ, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है एंड अल्टीमेटली जो आपका एंजाइम है वो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को सिंगली रिलीज कर देता है एंड द फ्री एंजाइम इज अगेन रेडी, ताकि वो दूसरे मॉलिक्यूल को टेकअप कर सके, कोई और केमिकल रिएक्शन कर सके या सबस्ट्रेट के अनदर मॉलिक्यूल को टेकअप करके फर्दर कैटालिसिस करा सके. नाउ गोइंग इनटू द डीप ऑफ दिस टॉपिक, क्या एंजाइम कैटालिसिस ऐसे ही हो जाता है? इज इट दैट सिंपल, जिस बारे में हमने पिछली 4 स्टेप्स में बात करी और पहले हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं. इज इट दैट सिंपल? बट नो, इट इज नॉट. There are various catalytic strategies that needs to be employed by enzyme. एंजाइम को बहुत सारी कैटालिटिक स्ट्रैटेजीज को यूज करना पड़ता है ताकि वो रिएक्शंस का कैटालिसिस कर सके. जैसे आपको ये पता है कि आपको मेडिकल एंट्रेंस देना है, बट इज इट दैट सिंपल कि आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल एंट्रेंस देना है, पेपर में बैठे, पेपर क्लियर हो गया और आप डॉक्टर बन गए? इज इट दैट सिंपल? नो, इट्स नॉट. यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज. कैसे डे प्लान करना है, किस दिन क्या तैयारी करनी है, कौन सी यूनिट्स मेरी स्ट्रॉन्ग है, कौन सी यूनिट्स मेरी वीक हैं, इनको मैं कब तक कवर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या उनको कवर करने के बाद मुझे उनकी रिवीजन चाहिएगी, अगर चाहिएगी तो कितनी चाहिएगी, स्पेसिफिक किसी टॉपिक को पकड़ना पड़ेगा या जनरली उसको रिवाइज करने से सब कवर हो जाएगा. दीज टाइप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो आप अपनी कॉमन लाइफ में अपनाते हैं टू अचीव योर गोल. जस्ट लाइक दैट, एंजाइम को किसी रिएक्शन का कैटालिसिस कराने के लिए
बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती हैं, and there are three main strategies that an enzyme employs ताकि वो catalysis कर सके reaction का. There are three important strategies. Number one is acid base catalysis. Number second process is known as covalent catalysis, and number third is known as metal ion catalysis. So, talking about these things, first we will talk about acid base catalysis. What do you mean by acid base catalysis? कैसे ये होता है, किसमें रोल है, हम देखते हैं. Acid base catalysis is the mechanism that involves proton transfer, and it can be specific as well as general. What I have said, जो एसिड बेस कैटालिसिस है, दिस इज अ प्रोसेस जिसमें आपको प्रोटॉन ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है. प्रोटॉन समझते हैं आप, सब एटॉमिक पार्टिकल इज अ प्रोटॉन. यू रेड अबाउट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में. तो उसी प्रोटॉन की यहाँ बात हो रही है कि प्रोटॉन ट्रांसफर जो एक एटम से हो जाता है, एक मॉलिक्यूल से जो प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, केमिस्ट्री में आप बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस पढ़ते हैं. तो वो प्रोटॉन ट्रांसफर जब इन्वॉल्व होगा, देन दैट मैकेनिज्म इज एसिड बेस कैटालिसिस. और ये दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी स्पेसिफिक और इट कैन बी जनरल. कैसे कैसे हो सकता है? जो स्पेसिफिक कैटालिसिस है उसके अंदर आपके हाइड्रोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस, कौन से आयंस? हाइड्रोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस will act directly as the acid and base groups respectively. अब आपको शायद थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या बात करी. हाइड्रोनियम आयन का मतलब H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस आयंस. ठीक है, अगर देखा जाए तो both these things will act as एसिड एंड बेस. आपने नॉर्मली भी पढ़ी है ये बात कि जब वाटर डिसोसिएट होता है देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव एंड OH माइनस. तो आपका जो हाइड्रोनियम है वो केमिकल नेम जो आपका होता है एक्वस कैटायन H3O पॉजिटिव, उसके लिए आप कॉमन नेम यूज करते हैं हाइड्रोनियम. जब आपके वाटर की प्रोटोनेशन होती है तो उसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस होते हैं दैट इज हाइड्रोनियम आयन. फाइन, H3O पॉजिटिव आयन. तो वो आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मतलब कि OH माइनस, दैट एक्ट डायरेक्टली एज एसिड एंड बेस ग्रुप रिस्पेक्टिवली. मतलब हाइड्रोनियम आयन एसिड की तरह काम करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बेस ग्रुप की तरह काम करेगा. पता है ना आपको ये बात की OH माइनस की बात जब आती है तो हमेशा हम बेस ग्रुप्स की बात करते हैं, बेसिक केमिकल की बात करते हैं. सिमिलरली अगर एसिड्स की बात आती है देन वी टॉक अबाउट H3O पॉजिटिव आयंस, क्योंकि जो आपके H3O पॉजिटिव आयंस होते हैं अगर मैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं देन योर वाटर इज फॉर्म्ड. लेकिन वहीं मैं उसमें H3 प्लस डाल दूं देन अगेन H3O पॉजिटिव इज फॉर्म्ड. व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन देयर? H3O पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोनियम आयंस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए दैट फॉर्म्स H2O, और H2O में अगर H3 पॉजिटिव डाल दिया जाए दैट फॉर्म्स H3O पॉजिटिव अगेन. ये मैं आपको केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, आपको ये सब चीजें ऑलरेडी, दीज आर वेरी बेसिक कंसेप्ट्स. अर्हेनियस एसिड की जब आप बात करते हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट की जब आप केमिस्ट्री में बात करते हैं वहां ये सारी चीजें आती हैं. उसी का जो पॉजिटिव आयन होता है ना अर्हेनियस एसिड में, उसी को बोलते हो आप हाइड्रोनियम आयन. तो कहने का मतलब ये है कि वो एसिड ग्रुप की तरह बिहेव करता है और हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आपका बेस ग्रुप की तरह काम करता है. तो जिस कैटालिटिक ट्रांसफर में हाइड्रोनियम आयन एसिड की तरह और हाइड्रोक्साइड आयन बेस ग्रुप की तरह काम करेंगे उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस. प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया ना यहाँ पे इन्वॉल्व, मैंने बताया पूरा मैकेनिज्म कि कैसे कैसे वाटर से कैसे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोनियम आयन से कैसे वाटर बनता है. हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है कि H2O टूटता है तो H पॉजिटिव
और OH माइनस में कन्वर्ट होता है। तो ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एसिड बेस कैटालिसिस। लेकिन इसी में सेकंड वन इज जनरल। जनरल का मतलब क्या है? द प्रोटॉन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स are other than hydronium ions and hydroxide ions. In chemistry, you have many more other functional groups or the proton donors and acceptors. हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन तो पर्टिकुलरली वाटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं हम। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनर या एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, जैसे कि अमीनो, इमिडाजोल, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनोलिक अमीनो एसिड्स, जो कि एसिड या बेस की तरह काम कर रहे हैं। इनका जब इन्वॉल्वमेंट होगा, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड का आयन का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा जनरल वाले में, उसका काम सिर्फ स्पेसिफिक के लिए है। स्पेसिफिक आप इसलिए याद रख सकते हो कि जब भी आप एसिड बेस वाले की बात करते हो ना, तो आप हमेशा हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्साइड आयंस की टर्म में बात करते हो यूजुअली। तो कहने का मतलब हो गया कि अगर स्पेसिफिक स्पेशल बात करनी है तो उनकी बात करेंगे, लेकिन अगर जनरल बात करनी है तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं जो एसिड या बेस की तरह काम करते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप याद रखने हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? अमीनो, इमिडाजोल, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, फिनोलिक अमीनो एसिड, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियस ग्रुप्स विल बिहेव। इसका एक एग्जाम्पल जो बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकैन कैटालिसिस बाय लाइसोजाइम। आपने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाली यूनिट में पढ़ा होगा, जो आपकी आप एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, उसमें यू वुड हैव रेड अबाउट दिस थिंग। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो ये रिएक्शन होती है पेप्टिडोग्लाइकैन का कैटालिसिस कराता है जब लाइसोजाइम, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो एक एग्जाम्पल है एसिड बेस कैटालिसिस का, ठीक है। इसमें आपके पास जो जब आप पेप्टिडोग्लाइकैन की बात करते हैं तो वहाँ पे β1,4 लिंकेज प्रेजेंट होती है, जिसको क्लीव कर देता है लाइसोजाइम, एंड फर्दर उस तरीके से रिएक्शन कैरी आउट होती है। अगर मैं वो रिएक्शन आपको पूरी समझाऊंगी तो दैट विल बी मतलब फॉर 11th-12th पीपल दैट कुड नॉट बी अंडरस्टैंड ईजिली। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसीलिए आई एम नॉट टॉकिंग द डिटेल्स ऑफ दिस थिंग। अगर डिटेल्स की हम बात करेंगे तो इन नेक्स्ट वीडियो फॉर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स आई विल पोस्ट इट फर्दर ऑन, वहाँ पे मैं आपको आई विल शेयर दैट थिंग कि कैसे कैसे होता है। लेकिन अभी के लिए व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि एसिड बेस कैटालिसिस की जब बात हो रही है तो उसका एक एग्जाम्पल है पेप्टिडोग्लाइकैन कैटालिसिस बाय लाइसोजाइम। Moving on to the next type of catalytic strategy, that is covalent catalysis. कोवेलेंट, कोवेलेंट से याद रखेंगे को एंजाइम। कोवेलेंट में क्या आ रहा है? को आ रहा है। को एंजाइम में क्या आ रहा है? को आ रहा है। इसको याद रखेंगे कि कोवेलेंट कैटालिसिस में आपको किसकी प्रेजेंस चाहिए? को एंजाइम्स की प्रेजेंस चाहिए, because in this type of catalytic strategy it involves the formation of a reversible covalent bond between the enzyme and substrate. क्या होता है इस टाइप के कैटालिसिस में? एक रिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, किसके बीच में? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और रिवर्सिबल बनेगा, ठीक है। After the completion of reaction, the enzyme return to its original unmodified state. Obvious, जो normally होता है, क्या हो रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में एक रिवर्सिबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो एंजाइम है वो अपनी ओरिजिनल अनमॉडिफाइड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन मैंने बात करी कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम्स चाहिए, तो यहाँ पे कोएंजाइम्स चाहिए आपको कोवेलेंट कैटालिसिस में, ये तो आप ध्यान रखेंगे। प्लस जो यहाँ पे एंजाइम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, किस तरह से बिहेव कर सकते हैं? दे कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स। अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की बात करो तो अमीन्स, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एंड थायोल ग्रुप्स, दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स
These groups perform covalent nucleophilic catalysis and attack electrophilic centers of the substrate, forming covalent intermediate. समझ रहे हैं? See, I need to tell you this कि if you know the chemistry, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, कौन से ग्रुप उसकी तरह बिहेव करते हैं, ओनली देन यू कुड बी दीज थिंग्स कुड बी अंडरस्टूड टू यू. ये तभी आपको समझ में आएंगी जब आपको इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स की केमिस्ट्री पता है. सो गो एंड रीड दोज थिंग्स. Pick up your +1 NCERT, open up the chapters of organic, you will find these topics there, and please revise. Another chemistry teacher would also be teaching these things to you, so वो भी आप उसको रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो. आपको वो बेसिक कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो इसके बेसिक समझ में आएंगे. न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं हमारे केमिस्ट्री में एमाइंस, कार्बोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, थायोल ग्रुप्स जैसे. तो जब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट कैटालिसिस की, तो हम कह रहे हैं कि जो एंजाइम्स है वो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स की तरह बिहेव करते हैं. तो यहाँ क्या हो रहा है, जब न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह एंजाइम काम करेगा ना, तो उस टाइम पे वो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा. ये बेसिक केमिकल रिएक्शन है, बेसिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं कि जब कोई न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस है, कोवेलेंट न्यूक्लियोफिलिक कैटालिसिस अगर होनी है, तो अगर आपका एंजाइम न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा तो वो सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा और उससे कोवेलेंट इंटरमीडिएट बनेगा. वहां फिर बाद में रिएक्शन कंप्लीट होगी. ठीक है. Typical electrophilic centers in substrates form covalent interaction oblique intermediates. Typical electrophilic centers in substrates include phosphoryl groups and acyl groups. अब ये बात कर दी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इन सबस्ट्रेट की, कि सबस्ट्रेट में जो आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होते हैं वो क्या हो सकते हैं, फॉस्फोराइल ग्रुप हो सकता है, एसाइल ग्रुप हो सकता है. तो दिस इज व्हाट यू मीन बाय कोवेलेंट कैटालिसिस. और इनका काम कैसे होगा कि जो भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सबस्ट्रेट में प्रेजेंट हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर वाले एंजाइम, एंड वाइस वर्सा. अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर वाले एंजाइम है तो वो आपके सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे. नाम यहाँ पे दिए ही हुए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, तो वाइस वर्सा एक दूसरे के ऊपर अटैक करेंगे. इसका एक एग्जाम्पल होता है, इट इज नॉट रिटन देयर बट यू कैन राइट इट. कोवेलेंट कैटालिसिस का एक एग्जाम्पल होता है व्हेन यू टॉक अबाउट काइमोट्रिप्सिन एंजाइम. काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो वर्क करता है, दैट वर्क ड्यूरिंग कोवेलेंट कैटालिसिस स्ट्रेटजीज. इसके बाद यू हैव मेटल आयन कैटालिसिस. व्हाट इज इट? ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि उन एंजाइम्स के साथ मेटल आयंस लिंक्ड रहें, जिसको हम बोलते हैं मेटेलो एंजाइम्स. मेटल एंड लिंक्ड विद एंजाइम, कहने का मतलब मेटेलो एंजाइम्स. ये जो मेटल आयंस होते हैं, दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिस्ट. और व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं, दे स्टेबलाइज द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नेगेटिव चार्ज ऑन ए रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट कैन डेवलप ड्यूरिंग ए रिएक्शन. जब मेटल आयन कैटालिसिस होता है तो मेटल आयंस की जरूरत होती है बहुत सारे एंजाइम्स को उनके साथ लिंक्ड रहें, जिनको हम मेटल एंजाइम बोलते हैं. तो जब ये मेटल आयन इलेक्ट्रोफिलिक कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं तो ये क्या काम करते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, कैटालिटिक रिएक्शन, जब कभी रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है और उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नेगेटिव चार्ज की वजह से बढ़ जाती है, तो उसको स्टेबलाइज करने का काम कौन करता है? मेटल आयंस. दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफिलिक कैटलिस्ट. Other than that, metals can also mediate oxidation reduction reactions by reversible changes in metal ions oxidation state. What is it? जो मेटल्स हैं और वो क्या काम करते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को भी वो मीडिएट कर सकते हैं. कैसे?
जो मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें रिवर्सिबल चेंजेस करके. दिस इज मेटल आयन catalysis. Then after that, as I talked that we will be having another topic about inorganic elements, that is cofactors and enzymes. ठीक है, कोफैक्टर्स और एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ये आपके बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं. देयर आर वेरी फ्यू इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में जो आपको दिए गए हैं दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, बट उसके अलावा भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी. कॉपर, दैट इज Cu2+ आयन, ये किस एंजाइम का कोफैक्टर होता है? दिस इज द कोफैक्टर फॉर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंजाइम नेम इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड द कोफैक्टर इज कॉपर. याद रखेंगे आप, कॉपर फ्रॉम सी एंड साइटोक्रोम इज ऑल्सो फ्रॉम सी, तो वहां से कॉपर आ गया. साइटोक्रोम ऑक्सीडेज CO, कॉपर CO स्टार्टिंग हो रही है. ठीक है. सेकेंड वन इज आयरन. Fe2+ भी हो सकता है, Fe3+ भी हो सकता है. इसके लिए कौन सा एंजाइम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एक तो वही जो कॉपर के लिए है, क्योंकि एंजाइम के अलग अलग कोफैक्टर्स हो सकते हैं एक ही एंजाइम के. तो आयरन का एक एंजाइम कौन है? वही जो कॉपर के लिए था, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. सेकेंड वन इज कैटलेज एंजाइम. एंड द थर्ड वन इज पर ऑक्सीडेज एंजाइम. फाइन. देन आफ्टर दैट यू हैव, इसको आप कैसे याद रखेंगे आयरन वाले को? अगर आपने लॉ के बारे में सुना, मतलब लॉ की बात करते हैं हम, व्हेन यू टॉक अबाउट लॉ, कानून, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात कर रही हूँ मैं. पुलिस जो धाराएं लगती हैं किसी अक्यूज्ड पे, आईपीसी के सेक्शंस लगते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, सेक्शन जो लगते हैं दैट इज आईपीसी. जस्ट लाइक दैट, उससे आप याद रख लो. आईपीसी, आयरन परऑक्सीडेज कैटलेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, आईपीसी. सेकंड के लिए क्या है मैंने बताया याद रखने के लिए. आयरन वाले के लिए यू कैन रिमेंबर इट बाय यूजिंग आईपीसी. फर्स्ट वन इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज CO, ऐसे ही कॉपर की स्टार्टिंग CO. दो याद हो गए. थर्ड वन इज पोटेशियम. पोटेशियम के लिए एंजाइम कौन सा है? पाइरुवेट काइनेज. इस एंजाइम के बारे में हम बार बार पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के चैप्टर में, या फिर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट ग्लाइकोलिसिस. तो पाइरुवेट का फेट होता है, और जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से पाइरुवेट बनता है वहां पे वी विल स्टडी अबाउट द एंजाइम पाइरुवेट काइनेज. सिंपल. P से पोटेशियम, P से पाइरुवेट काइनेज. पोटेशियम का पाइरुवेट हो गया. पोटेशियम का फर्स्ट वर्ड इज पी, पायरुवेट का फर्स्ट वर्ड इज पी. देन उसको शॉर्ट फॉर्म में आयन को कैसे लिखते हो? K+. काइनेज क्या है? K. हो गया याद. देन यू हैव फोर्थ कोफैक्टर दैट इज मैग्नीशियम, दैट इज Mg2+. इसको हाउ विल यू रिमेंबर? Enzymes for this are hexokinase, glucose 6 phosphatase. The spelling is written wrong here. This is not PHPOS. This is glucose 6 phosphatase. PHO. PH के बाद PO नहीं आएगा. This is PHO. SPHATASE. Glucose 6 phosphatase and pyruvate kinase. These three enzymes we will study about this in respiration chapter. एंड वहां से आपको क्या याद रखना है कि उसके अंदर आपको Mg2+ की जरूरत होती है. जब हम फर्दर उस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे ना, देन वी विल फाइंड कि Mg2+ इज नीडेड देयर. या आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, जो सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस करते हैं जब प्लांट्स, तो वहां पे आपको जो कोफैक्टर चाहिए होता है, आपने अगर पढ़ा है, सुना है, तो मैग्नीशियम की जरूरत होती है Mg2+. वहां से आप इसको याद कर सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस में भी क्या है, ग्लूकोज एंड ऑल का रूल है. फोटोसिंथेसिस में भी ग्लूकोज एंड ऑल का रोल है. तो वहां पे रिएक्शंस में एंजाइम यूज होते हैं, तो उन एंजाइम्स के लिए कोफैक्टर कौन चाहिए? Mg2+. Then next you have is manganese, Mn2+.
इसके लिए what two enzymes are there? Number one is arginase, number two is ribonucleotide reductase. Number one is arginase, number two is ribonucleotide reductase. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Then you have molybdenum dinitrogenase enzyme, very easy. रूट नोड्यूल फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की बात करेंगे जब हम फर्दर आगे प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर पढ़ेंगे. वहां से आपको बहुत अच्छा आसानी से याद हो जाएगा कि मोलिब्डेनम क्यों कोरिलेटेड है डाइड नाइट्रोजनेज एंजाइम से. अभी के लिए आप इसको याद करो, वहां आपको समझ में आएगा कि क्यों. देन यू हैव निकल 2 पॉजिटिव, उसके लिए कौन एंजाइम है? यूरिएज. अगेन आपको याद रखना पड़ेगा, निकल के लिए देयर इज यूरिएज. देन यू हैव सेलेनियम, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. दिस इज ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज. देन यू हैव जिंक. जिंक के एंजाइम्स कौन है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस A and P. This is again to be remembered. These are the things जो आपको लर्न करने हैं, आपको याद रखने हैं. Specifically if talking about zinc, तो ऐसे इसमें कितना हो गया? 3. देर आर 3 एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज A and B. तो इसको आप याद रखेंगे. अदर देन दैट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होता है, तो उस हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि जिंक उसका कोफैक्टर है. So this is all for today. Now in the very next class we will talk about cofactors in little detail, and then we will be talking about concept of activation energy, and basically the, what can you call it as, kinetics of enzymatic reaction. In the very next class we will study about kinetics of enzymatic reactions as well as about detailing of cofactors. And now you have the feature of that day, that is today for 2021 we have Buddha Purnima today, and might be most of the students or most of the people would be definitely knowing about Buddha. Why do we celebrate Buddha Jayanti? Is because this is the birthday of Lord Buddha, and उनको याद किया जाता है उनकी जो enlightenment उन्होंने दिया. Because many Hindus believe बुद्धा कि वो 9th incarnation थे लॉर्ड विष्णु के, जैसा कि स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है. जो लॉर्ड विष्णु हैं उनका 9वां अवतार कुछ हिंदूज मानते हैं कि वो रहे हैं, हमारे ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है. बेस्ड ऑन दैट आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे वी सेलिब्रेट दिस डे एज बुद्ध पूर्णिमा. वो बहुत एक उनका जगह था विहार आज, जहाँ पे सेलिब्रेशन बिगिन होता है, तो जो लोग हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ वो बुद्धा एनलाइटमेंट देते थे अपने टाइम में. एंड पीस, एनलाइटनमेंट, पॉजिटिविटी की बातें इन्होंने कही थी. एंड एवरीवन होप कि मे द एग्जाम्पलरी लाइफ ऑफ बुद्धा इंस्पायर यू. ऑफ कोर्स आप अगर उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि how he benefited a number of people and how selfless he was. So you have to find your inner peace, just like he found his inner peace and he gave peace to other people also. So thank you, and we will be continuing in the next video.